Hello students, welcome to the channel. In the first video, we have learned about what is differential equation, what is order and degree of differential equation, and also we have seen first order, first degree differential equation and its type. So let's begin with the very first topic, that is variable separable form, which is the first type in first order and first degree differential equation. Okay, so let's begin with variable separable form. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ओके, सो एज आई टोल्ड यू, वी शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सेज दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x dx equals to f of y dy is known as what? Variable separable form. It is clear that all the function of x will be in your LHS, okay, and all the function of y will be in RHS. Okay, so since function of x is one side and function of y is on other side, means variables are separated. Okay, that's why this form is known as what? Variable separable form. Okay, so how it will look like? So see, for example, it is given x dx equals to y dy. Okay, now second example, suppose we are having function of y, this is sin y into dy, okay, equals to cos x into dx. ओके, मीन्स जो भी फंक्शन ऑफ y है वो एक साइड है और जो भी आपका फंक्शन ऑफ x है वो अदर साइड है. ठीक है, तो अगर आपके दोनों x के फंक्शन एंड y के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट साइड होते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं होते हैं, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स वाई डी वाई हो गया, यहाँ पे क्या है आपका dx है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, आपके दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? सेपरेटेड होने चाहिए. जैसे यहाँ पे है साइन वाई डी वाई और एक साइड क्या है? कॉस एक्स डी एक्स. मतलब y वाले वेरिएबल्स एक साइड और x वाले वेरिएबल दूसरे साइड. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसको आप, ठीक है, x के वेरिएबल और y के वेरिएबल को आप क्या करते हो? सेपरेट कर पाते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो कौन सा फॉर्म है? दैट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, सो इन दिस वे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है या वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है. आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको दिया हुआ है, तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल एक साइड है, y का वेरिएबल यहाँ पे है, x का वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है, आपके वेरिएबल्स अगर सेपरेट हो गए हैं तो आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करना है? आपको इनको इंटीग्रेट कर देना है. ओके, सो सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड और इंटीग्रेट करने पे जो भी आपको आंसर आएगा वो क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम्स. इट इज गिवन दैट solve the given differential equation which is given sec square x into tan y dx plus sec square y tan x into dy equals to 0. Okay, so in the question it is given that solve the given differential equation. Okay, so it is not mentioned that solve using variable separable form. Okay, so I am telling you 3-step method which you have to use. First step will be what? Always write the given differential equation in the form of what? dy by dx. Okay, so always try to represent the given differential equation in the form of dy by dx. Now as we know that solution of every differential equation is given by what? By integration. Okay, so we have to integrate the given differential equation. So for sure this dx will not be in the denominator. Okay, so first we will write dy by dx equals to something, and then we will transfer in the second step, we will transfer this dx in RHS. Okay, so here it will be what? Your dx. Okay, so in LHS there will be dy and on the other side it will be what? Dx. After that we will take all the variables of y, towards dy and all the variables of x towards dx. Okay, तो एक साइड आपके y के वेरिएबल्स आ जाएंगे और दूसरे साइड आपके x के वेरिएबल्स आ जाएंगे. सो नाउ दिस इज व्हाट योर वेरिएबल सेपरेबल
form, right? So once variables are separated, in step 3 what we have to do, we have to give solution of variable separable form, that is solution of variable separable form is given by integrating both the side. ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे वेरिएबल आया रहेगा उसका इंटीग्रेशन, और आपको आरएचएस में जो भी एक्स का वेरिएबल रहेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स राइट डाउन सॉल्यूशन. Here first we have to express in the form of what, dy by dx, right? So express करने के लिए हमें क्या करना है, we are going to take this dy, तो यहाँ पे रहेगा, dx वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं RHS में ट्रांसफर कर देते. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई. आपको क्या हुआ, dy वाला जो टर्म था उसको मैंने यहाँ पे रखा, और ये x वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे RHS में ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या आएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स. लेकिन मुझे चाहिए क्या, वी नीड वॉट, डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो एक साइड मेरा डी वाई है और दूसरे साइड डी एक्स है, जो कि इसके बाद वाला मेरा स्टेप था. ठीक है ना. तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक साइड डी वाई है, दूसरी साइड डी एक्स है. तो मैं वाई के सारे वेरिएबल्स को डी वाई के साइड लूंगा, और जहाँ पे भी मेरा डी एक्स है वहाँ पे एक्स के सारे वेरिएबल्स ले लूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग व्हाट, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स. तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई वाई का वेरिएबल है तो ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो टेन वाई जो है वाई का वेरिएबल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये साइड लेके आएंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS में ट्रांसफर कर देंगे, राइट. तो फिर हम लोग लिखते हैं, इट विल बी व्हाट, देन सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, टेन वाई. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर टेन वाई इंटू डी वाई. नाउ यहाँ पे क्या है मेरे पास, dx है, तो dx क्या है, x का वेरिएबल, जितने भी रहेंगे वो dx के साइड आएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन में, यहाँ पे देखो टेन एक्स था तो वो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टेन एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक साइड dy और दूसरी साइड dx को लिखा. आफ्टर दैट मैंने dy को रेफरेंस आपको लेना है, तो y के सारे वेरिएबल्स आप dy वाले साइड लेके आओ, और dx के साइड आप x के सारे वेरिएबल्स लेके आ जाओ. तो नाउ यू कैन सी हियर कि वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए. ठीक है. तो सिंस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस वेरिएबल्स आर separated therefore solution will be given by integration. ठीक है. therefore solution will be given by integrating both the sides. ठीक है. integrating both sides. ठीक है. तो अभी क्या करना है, हमें दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, राइट. So let's integrate the both side of this differential equation. ठीक है. Before that, remember this formula, that is in integration we know that, आपको क्या पता है. ठीक है. We have learned in the integration, जो formula आपको दिया हुआ था उसमें आपको ये भी दिया हुआ है कि when we are integrating a function which is in the denominator, और इसी का जो डेरिवेटिव है अगर वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ जो भी आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन है fx, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो प्लस सी. ठीक है ना. तो ये क्या है, दिस इज योर फॉर्मूला. अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या दिया है, टेन वाई दिया है. ठीक है. ये है मेरा फंक्शन टेन वाई, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं. तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय टेन वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू, अगेन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले मैं माइनस का साइन बाहर ले रहा हूँ. फिर क्या आएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टेन एक्स. ठीक है. इंटू डी एक्स. ओके. नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट डिनोमिनेटर में क्या है, ये फंक्शन है टेन वाई, और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. तो आंसर क्या आना चाहिए, लॉग ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स कहाँ है आपका, डिनोमिनेटर में. तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ टेन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस का साइन बाहर है. ठीक है. और यहाँ पे टेन एक्स और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लॉग ऑफ टेन एक्स, राइट, प्लस
सी। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको LHS में लॉग का फंक्शन मिलता है और RHS में भी आपको लॉग का फंक्शन मिलता है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है वो भी क्या होता है, लॉग के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप कांस्टेंट का लॉग लोगे तो भी आपको एक वैल्यू कांस्टेंट ही मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी यू हैव टू राइट व्हाट, लॉग सी, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा यहाँ पे, लॉग ऑफ 10y प्लस लॉग ऑफ 10x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, लॉग c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट व्हाट इज लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है ना। हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि लॉग a इंटू b क्या होता है आपका, लॉग a प्लस लॉग b, राइट। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ 10x इंटू 10y, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, वी आर हैविंग लॉग c ऑन द RHS, ठीक है। अब यहाँ से log c, ठीक है, यहाँ पे देखो log जो फंक्शन है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू क्या आएगा, 10x इंटू 10y इक्वल्स टू c, okay. So this is the required solution of given differential equation. Okay students, so hope it is clear how to identify the given differential equation, ठीक है। तो जो भी आपको 3 स्टेप बताया है वो हमें यूज करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आंसर, ओके। सो टू बी मोर क्लियर, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, y स्क्वायर माइनस dy by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू dy by dx, okay. So as per step 1 what we have to write, we have to write given differential in the form of dy by dx, ठीक है। तो पहले आपको क्या चाहिए, dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dy by dx फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग, वी हैव टू राइट व्हाट, सिंस वी नीड dy by dx कॉमन, सो वी कैन राइट इट एज व्हाट, यहाँ पे y स्क्वायर रखेंगे और dy by dx को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर dy by dx प्लस dy by dx, राइट। और यहां से भी अगर हम लोग dy by dx कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से तो x स्क्वायर कॉमन आएगा प्लस यहां से 1 कॉमन हो जाएगा, राइट। और बाहर क्या आएगा, वी आर हैविंग व्हाट, dy by dx, राइट। तो मुझे क्या मिला, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 dy by dx, ठीक है। तो आपको यहां से dy by dx की वैल्यू क्या मिलेगी, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ dy by dx एज y का स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज dy by dx का वैल्यू आ गया। अब क्योंकि मुझे सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए, ये जो dx है, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर में कभी होगा नहीं, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग dy को एक साइड रखेंगे और ये जो आपका dx है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो डू दैट, नाउ वी आर हैविंग व्हाट, dy इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, राइट। सो इन द RHS मुझे क्या मिल रहा है, dy। तो मैं क्या करूंगा, y का जो भी वेरिएबल होगा उसको मैं dy के साइड लेके आऊंगा और जो भी मेरा x का वेरिएबल होगा उसको मैं dx के साइड रखूंगा, ओके। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज y का स्क्वायर। तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग उसको LHS में, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ हियर वी कैन सी वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, मतलब आपको LHS में y के वेरिएबल्स मिल रहे हैं और RHS में आपको x के वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ओके। मींस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, देयरफॉर ये कौन सा फॉर्म है आपका, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो हम लोग लिखेंगे, सिंस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर separated, therefore solution will be given, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, ओके। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट। सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज गिवन, ओके। तो क्या था आपका, 1 अपॉन y का स्क्वायर dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। तो
हम लोग 1/y² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला। ओके, बिकॉज दिस 1/y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज y⁻²। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ y⁻² dy इक्वल्स टू 1/x² + 1 या 1 + x²। ठीक है ना, वी नो दैट कि इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 + x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x + c। ओके, बट अभी हमारा LHS का जो है वो इंटीग्रेशन बाकी है, राइट। तो यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला यूज करोगे। पावर फॉर्मूला होप कि आपको याद होगा, क्या होता है? दैट इज x⁻n dx। क्या होता है आपका? x⁻n + 1 डिवाइड बाय n + 1, राइट। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? y⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 इक्वल्स टू RHS विल बी एज इट इज, दैट इज tan इनवर्स x + c, राइट। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा आपका? y⁻1 एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपको कितना आएगा? -1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x + c। ओके, तो y इनवर्स का क्या मतलब है? y इनवर्स मीन्स सिंपली 1/y और RHS विल बी एज इट इज, दैट इज tan इनवर्स x + c। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन differential equation. Okay, so hope it is clear how to identify variable separable form and how to write its solution. Okay, so thank you so much for watching the video.